A very good morning to all of you. Today we will discuss about the next one topic of chapter number 13, chapter number 12, which is the capital account. In the previous topic, we have studied about the concept of the balance of payment account. Then we were doing about the concept of components of balance of payment account, in which the major three components are there: current account, capital account, and official reserve account. Current account concept was completed. Now we will discuss about the next one component of the BOP, which is the capital account. So in the case of the current account, we have studied that कि उसमें वो सभी transactions record होती है which doesn't impact on the status of the assets and liabilities of a country with relation to the rest of the world. अब यहाँ पर जो हमारा सेकेंड अकाउंट आया, तो सेकेंड अकाउंट में अब कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, तो इसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी विच अल्टीमेटली इम्पैक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पर मेनली क्या चीज आ जाएगी कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो ऐसी ट्रांजैक्शन से रिलेट करेगा जो मेनली किस चीज पे इम्पैक्ट करती हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी के स्टेटस पे इम्पैक्ट करती हैं एक कंट्री के. कैसे इम्पैक्ट करती हैं, इधर की चाहे वो असेट्स जो है वो इंक्रीज होंगी या रिड्यूस होंगी, चाहे लायबिलिटी इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती हैं. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लीड टू द फ्यूचर क्लेम्स. मैनी टाइम इट हैपेंड कि जैसे कि लगाओ वो कह रहे हैं कि देखो समटाइम इट हैपेंड कि अगर हम कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है यहाँ पर दैट की एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स जैसे कि प्लांट मशीनरी, ये तो असेट्स क्रिएट कर देते हैं, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होना चाहिए? नहीं, ये कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता. बिकॉज ऑफ द मेन रीजन क्या है इस बात का कि जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है हर टाइप के गुड्स का, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स है या कैपिटल गुड्स है, उसको हमने कैसे कंसिडर किया एज ए मर्चेंटाइज और विजिबल ट्रेड, जो कि ऑलरेडी हमारे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाता है. तो इन द सेंस वी कैन से दैट in the case of the capital account there isn't any requirement of the recording of goods and exports and imports of the capital goods because it is already recorded in the current account. After that, now the question arises, what are the major components of the capital account? The main one, two components of the capital account is there. The first one is the borrowing and second one is the foreign investment. Both of the component will also be discussed in the detail. The first one is the borrowing. तो borrowing क्या होता है? Simply money borrow करना, कि हमारी इकोनॉमी ने अगर बाहर से पैसा बोरो किया है, that is known and that is included in the heading of the borrowing. But borrowing can also be of two types. Which kind? External commercial borrowing and external assistance. अब दोनों को ध्यान से देखिए. Commercial borrowing means which is mainly done with the motive of business work. और external assistance means assistance में होता है कि कोई आपको help कर रहा है. The major difference between both of that are कि जो हमारी commercial borrowings है, like this we can say कि जो market rate of interest होता है, जो हमारी commercial borrowing है वो market rate of interest पे available होती है. The simple external commercial borrowing is available at the market rate of interest. बट अगर हम external assistance की बात करें जो help के लिए provide की जाती है, that is mainly provided at the concessional rate. Concessional means कि generally जो rate होगा वो rest of the world से जो market rate चल रहा है interest का उससे कम होगा. Okay. सो बोरोइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जनरली क्या है कि अगर आप बोरो कर रहे हैं पैसा तो क्या है, इट जस्ट क्रिएट आर लायबिलिटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, कि हम इन फ्यूचर हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो पेमेंट देनी है. तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. तो यहाँ पर क्या है मेनली कि जो भी रिसिप्ट्स होती है फॉरेन एक्सचेंज की,
मनी जो आपको रिसीव हो रही है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी अकाउंट। तो जो हमारी बोरोविंग्स हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। और अगर हम ऑपोजिट काम करें, लेंडिंग कर रहे हैं हम बाहर की कंट्रीज में, तो वो कहाँ जाएगा, वो डेबिट आइटम में जाएगा। ओके, क्योंकि लेंडिंग में क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे पैसा जा रहा है, पैसा उनको ऐसा दिया जा रहा है कि जो हमें फ्यूचर में वापस मिल रहा है। और बोरोविंग में क्या है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, कि बोरोविंग में हमारे पास पैसा आ रहा है इनफ्लो, देन इट विल बी शोन एट द क्रेडिट साइड, आउटफ्लो विल बी शोन एट द डेबिट साइड ऑफ द capital account of BOP. Second one component of the capital account is the foreign investment. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मेनली क्या आता है, द मेनली इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय द आउटसाइडर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द इन्वेस्टमेंट मेनली which is made by the outsiders will be termed as the foreign investment. Now the question arises, which kind of the foreign investment is included here? There are mainly two kinds of investment: portfolio investment एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो और फॉरेन डायरेक्ट दो तरीके की इन्वेस्टमेंट आ जाती है जो मेनली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज। कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मेनली जो हमारी फाइनेंशियल असेट्स में जो पैसा लगाया जाएगा, इट मीन्स द शेयर्स एंड बॉन्ड्स, उसमें जो पैसा लगाया जाता है, द सिंपल थिंग दैट इज termed as the portfolio investment. So portfolio investment refers to the investment which is mainly done by the rest of the world in the shares and bonds of the domestic companies। कि हमारी कंपनीज में जो शेयर्स बॉन्ड्स में बाहर की कंपनीज पैसा लगाएंगी, that is known as the portfolio investment. And second one is the direct investment। डायरेक्ट क्या हो जाता है कि डायरेक्टली ओनरशिप ले लेना, डायरेक्टली ही कंपनी सेटअप करना, ऑफिस सेटअप करना, बिजनेस सेटअप करना दूसरी कंट्री के अंदर, दैट इज द बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारी कंट्री में कुछ भी ऐसे स्टोर्स या कुछ भी ऐसी कंपनी सेटअप की जाती है डायरेक्टली, दैट इज नोन एज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो बोथ ऑफ दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट। बोरोविंग्स में हमारा क्या आ जाएगा, द कमर्शियल बोरोविंग एंड असिस्टेंस बोरोविंग। एंड इन्वेस्टमेंट में देयर इज आल्सो द टू टाइप्स, portfolio investment and foreign direct investment. Now the next one, other components of capital account। कि borrowings और investment को छोड़कर भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होती हैं। व्हाट आर दैट? द फर्स्ट वन इज देयर, दैट इज द एनआरआई डिपॉजिट्स। तो एनआरआई डिपॉजिट्स में मेनली क्या आ जाता है कि एनआरआई डिपॉजिट मीन्स कि नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इसमें मेनली आपको ध्यान देना है कि एनआरआई डिपॉजिट्स जो हमारी कंट्री में किए गए हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड ओनली द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। सो नॉन रेजिडेंट इंडियन शुड मेक डिपॉजिट्स इन इंडिया, मतलब हमारी कंट्री के जो एनआरआईज हैं और हमारी कंट्री की कंपनीज में ही उन्होंने जो पैसा लगा रखा है, दैट इज बी इंक्लूडेड इन द एनआरआई डिपॉजिट्स। पे अटेंशन रिगार्डिंग द थिंग ऑल्सो कि अगर एनआरआईज ने अपनी फैमिलीज को पैसे भेजे हैं इंडिया के अंदर, तो वो क्या है, वो करंट ट्रांसफर है, वो क्या है, वो वन साइडेड पेमेंट है। तो वो सिर्फ हमारे करंट अकाउंट में जाता है। सिर्फ अगर हमारी कंट्री में वो लोग डिपॉजिट्स कर रहे हैं, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी और तरीके से बैंक्स में डिपॉजिट रख रहे हैं, दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, नॉट द एंटायर अमाउंट सेंट बाय देम। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द बैंकिंग कैपिटल। अब बैंकिंग कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा देखिए, अदर देन द एनआरआई डिपॉजिट्स, क्योंकि अब हमने एनआरआई डिपॉजिट्स की अलग से हेडिंग कर ली, नो डाउट। तो बैंकिंग कैपिटल भी हमारा एक सोर्स होता है, अनदर कंपोनेंट होता है कैपिटल अकाउंट का।
इसमें मेनली क्या आ जाता है कि जो फॉरेन के लेवल की असेट्स हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट। द मेन थिंग इज देयर कि कमर्शियल बैंक ने जो है बाहर की कंट्री के लोगों की जो भी असेट्स अपने पास रखी हैं कि वो उनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी अनदर चीजों में, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बट अदर देन द एनआरआई डिपॉजिट्स, क्योंकि एनआरआई डिपॉजिट्स का तो पार्ट हमने ऑलरेडी सेपरेट कर दिया। सो हेयर अगर बाहर की कंट्री के लोग क्या करते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक में कुछ भी डिपॉजिट्स रखते हैं, दैट विल लीड टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आफ्टर दैट द लास्ट वन component of the capital account is short term trade credit. शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में हमारी क्या चीज आ जाएगी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर कोई क्रेडिट लिया जाता है, दैट विल आल्सो लीड टू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। जैसे कि लगाइए कि परचेजेस किए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, बट इमिडिएट उसकी पेमेंट नहीं दी गई, जो रीपेमेंट है वो फ्यूचर में थोड़े टाइम बाद देनी है, सो दैट विल लीड टू द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। सो इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट विद नेगेटिव साइन। आउटफ्लो होगा ना कि अगर पेमेंट दी जा रही है, और यही अगर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें मिलना है, रिसीव होना है शॉर्ट टाइम पीरियड का कोई क्रेडिट, so that will be termed as the recorded as a positive sign. शॉर्ट टाइम पीरियड ट्रेड क्रेडिट मींस ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अंदर जो भी चीजें बोरो कर ली जाती हैं कि दैट इट विल बी पेड आफ्टर ए लिटिल बिट पॉइंट ऑफ टाइम, कि 6 मंथ लेटर, 1 ईयर लेटर ये चीज पे की जाएगी, दैट विल बी टर्म्ड एज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अगर आपने पेमेंट देनी है इंडियन लोगों ने आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल बी टर्म्ड एज द आउटफ्लो, और अगर रिसीव होनी है दैट विल बी टर्म्ड एज द इनफ्लो। This is the major level of the components of the capital account. First one is the borrowing. Borrowing हमने दो terms में define की, external commercial borrowing and external assistance. Second one is the foreign investment, foreign institutional investment जिसको हम portfolio भी बोलते हैं, foreign direct investment. Other than NRI deposits, banking capital जिसमें NRI deposits को छोड़कर बाकी capital, and short term trade credit. These are the major level components of the capital account. And same like the current account, कैपिटल अकाउंट में भी हम सारी पेमेंट्स को डेबिट साइड शो करेंगे नेगेटिव साइड पे, और सारी रिसिप्ट्स को हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे पॉजिटिव लेवल पे, और जो भी बैलेंस आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज द नेट फ्लो, नेट फ्लो ऑफ द कैपिटल, कि चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव है तो वो इनफ्लो को शो करेगा, नो डाउट कि हमारी कंट्री में ज्यादा पैसा आया है, और नेगेटिव है तो वो आउटफ्लो को शो करेगा कि हमारी कंट्री से पैसा गया है। We can take an example to understand it also. See like this, terms are given: external assistance, external commercial borrowing, short-term credit, banking capital जिसमें NRI deposit include नहीं है, net है, foreign investment, other flow and capital account balance। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बैलेंस कैसे आया, इन सबको टोटल करके। नो डाउट आप एक्सटर्नल असिस्टेंस, सारी नेट चीजें गिवन है, एक्सटर्नल असिस्टेंस प्लस कमर्शियल बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्लस बैंकिंग कैपिटल प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस अदर फ्लो विल बी इक्विवेलेंट टू द 91,390 यूएस मिलियन। अब हमने करंट अकाउंट भी डिस्कस कर लिया, कैपिटल अकाउंट भी डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन राइज आ जाता है कि अगर हम इंडिया के बीओपी अकाउंट के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस कैलकुलेट करना है हमें, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। द थिंग इज देयर द ओवरऑल बैलेंस हाउ इट कैन बी एस्टिमेटेड। जो आपका करंट अकाउंट है उसका बैलेंस, कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस, प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, कि अगर किसी तरीके की कोई एरर हो गई है या कोई चीजें भूल गई हैं लिखनी, दैट विल बी एडेड। So overall balance of the BOP will be included current account balance, capital account balance plus errors and omissions. So here we can call, हमें जो previous figures दी गई थी according to that the current account balance was -48,717, capital account balance was
91390 and errors or omission 902 was given. So this will be the overall balance of the BOP account. Current account balance, capital account balance, estimated value of one. This is the overall. This is the way to find out the balance of payment account.